Assalamu alaikum dear students of class 6. This is me your teacher Mushtaq Ahmed at Bera Foundation College Noshar Feroz, subject teacher computer. Dear students, today we are going to learn about the Microsoft Word and we are going to do the practical in Microsoft Word based on the insert tab. So dear students, first of all we have to concentrate it how Microsoft Word is opened. To open the Microsoft Word, you will have to press Window key from your keyboard and menu will appear and you will have to see it where the Microsoft Office Word 2007 is placed. So dear students, the menu that you see is the list of softwares that softwares are installed in our computer. It means whatever the number of softwares is stored in the memory of your computer, this menu displays all the softwares that are present in our computer. So this one is known as the menu list. So dear students, you will carry the cursor on Microsoft Word 2007 and you will have to press enter key from your keyboard. Microsoft Word is opened. So dear students, when you will open the Microsoft Word, the topmost bar is known as the title bar. Title bar displays the name of the program. For example, the program which we have opened is known as Microsoft Word. So here the Microsoft Word is displayed by a bar. This bar is known as the title bar. So dear students, later on title bar we have to discuss another bar that is known as the menu bar, and menu bar displays the techniques or the tools or the tabs that are displayed on the bar is known as the menu bar, and beneath the menu bar there is known as the toolbar. So dear students, here we are going to deliver a lecture based on the insert tab. So dear students, here there is the insert tab. So first of all, before going to the insert tab, we will have to concentrate that what is the function of the insert tab in Microsoft Word. Dear students, sometimes we need to insert a picture, sometimes we need to draw a line, or sometimes we want to draw or insert the shape on our document. Sometimes we need to insert the chart on our document. So dear student, insert tab enables us to perform all these said tools or techniques on our document. So dear students, for example, whenever you want to draw the table on your document, you will have to click on the table. So dear students, menu that displays insert tab, draw table, Excel spreadsheet और कोई टेबल. तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है इंसर्ट टैब हम क्यों पढ़ते हैं? इंसर्ट टैब का मतलब ये होता है जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना जा रहे हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट पर अगर हमने कोई शेप रखनी होती है, चार्ट रखना होता है, स्मार्ट आर्ट, पिक्चर या कोई टेबल हमें ड्रा करनी होती है, तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट टैब में जाएंगे. आई बात समझ में? कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें अपने डॉक्यूमेंट पर अपनी पिक्चर भी रखनी होती है. तो पिक्चर क्या होती है? पिक्चर किसी फोल्डर में या किसी लोकेशन में हमने सेव की होगी, तो
पिक्चर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वहाँ उसी फोल्डर में जाकर हम वो पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट पर सेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसर्ट टैब के थ्रू आउट हम बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अपने कंप्यूटर पर, अपने डॉक्यूमेंट पर रख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंसर्टिंग है। तो इंसर्ट सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप एक टेबल बनाना चाहते हैं तो देखेंगे कि टेबल कैसे इंसर्ट होती है। तो इंसर्ट टेबल कैसे होती है, टेबल पर आप जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद इंसर्ट टेबल, एक इंसर्ट टेबल होता है, डायरेक्टली हम नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज यानी इंसर्ट टेबल पर जैसे हमने क्लिक किया तो ये मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद टेबल साइज है, टेबल साइज के नीचे लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने कॉलम्स हम रखना चाहते हैं वो उतना नंबर कॉलम्स में रखेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रोज, जो जितना नंबर रोज का हम रखना चाहते हैं हम उतना रखेंगे। आई बात समझ में? तो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल आप नंबर ऑफ कॉलम्स 8 रखा आपने और नंबर ऑफ रोज 7 कर दिया, फिर आपने इंटर किया तो ये आपकी टेबल बन जाती। तो ये जो डिपेंड होता है वो हमारे माइंड पर होता है कि किस लेवल की हमें टेबल बनानी होती है। सबसे बात ये होती है, पहले तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि टेबल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक ये जो टेबल हमने बनाई है, इस टेबल पर एक तो हमारे कॉलम्स हैं, दूसरे हमारी रोज़ होती हैं। रोज़ वाली लाइनें कौन सी हैं और कॉलम वाली लाइंस कौन सी हैं, इस बात का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम टेबल को अच्छे तरीके से ड्रा कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो टेबल हमने इंसर्ट की है उस टेबल में हमारे कॉलम्स कौन से हैं और रोज़ कौन से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये जो आपकी टेबल है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जितनी भी हमारी लाइंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, ये हमारा कॉलम है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यानी टॉप टू बॉटम जो लाइनें हैं हमारी उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 7। तो ये हमारा क्या है, कॉलम्स होते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद हमने ये देखना है कि रोज़ कौन सी हैं। रोज़ हमारी होती हैं जो लेफ्ट राइट लाइन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि रोज़ कौन सी है, फ्रॉम लेफ्ट राइट जितनी भी हमारी लाइन है ये हमारी रो है। ये रो नंबर 1 है आपकी, उसके बाद ये रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, 6, 7। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे जो कॉलम्स हैं, टोटल कॉलम इसमें कितने, 8 कॉलम्स और 7 रोज़ हैं। तो रोज़ कौन से वाली होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं टेबल के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, here we have learned about to insert a table, and dear students, we have insert a table on the Microsoft Word, and your lecture is ended here. Your homework is to put the suitable data on in this table. तो डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क क्या है, ये जो टेबल हमने वर्ड में बनाई है उसी टेबल को आप फॉलो करेंगे, लेकिन कॉलम और रोज़ के अंदर आप सुटेबल डेटा रखेंगे और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे
ये जो आपका होमवर्क है वो हमें सेंड करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, योर लेक्चर इज completed here and we will meet in coming up lecture. Still Allah Hafiz. Assalamu alaikum dear students.